People say, what is an article? So basically, article is an adjective. It modifies a noun. Okay. Articles. Articles are basically of two types: indefinite article and definite article. In indefinite article, there are again two parts, a and an, and in definite particle, we have the. Let us now understand about indefinite article, that is about a and an. We all know that in English alphabets there are 26 alphabets in English, starting from A to Z or Z. We have total 26 alphabets. Out of these 26 alphabets, if we take out A, E, I, O, U, which is also called as vowels, the remaining whatever is left, all those 21 alphabets are called consonants. Let us now understand each kind of article one by one. Starting with indefinite article, that is A. Check the first letter of the following article. Use a or a when the next word starts with a consonant or when you hear the sound of consonant. For example, a girl, a bus, a frog, a table. आर्टिकल ए जो है, जो हम ए लगाते हैं, वो हम जनरली वो वर्ड्स के आगे लगाते हैं जो वर्ड या तो कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा हो या आपको वो वर्ड में कॉन्सोनेंट पहले सुनाई दे रहा हो, तभी हम उसमें ए लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ रैबिट, अ बॉय, अ ट्री और अ कार. Few points to remember. We also use a before you when it sounds like the word you. यह सुनाई देगा. For example, if we are saying university, तो university में पहला word आपको सुनाई देता है, that is य, and य stands for y. तो जब हम y की बात करते तो y is a consonant, इसलिए university के आगे अ आएगा. यूज़फुल बुक, तो यू अगेन आपको वर्स वाई सुनाई दे रहा है, इसलिए आप यूज़फुल बुक के आगे ए लगाएंगे. साउंड्स लाइक यू स्टार्ट्स विथ यू. फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन सिटी और यूरोपियन पर्सन और अ यूरोपियन. ओके, तो यहाँ पे ई यू का जो साउंड है वो भी आपको वाई सुनाई देता है, इसलिए भले ही वो स्टार्ट होता है एक वोवेल से, आप इसके आगे ए लगाएंगे. अनदर इंडेफिनाइट आर्टिकल इज एन. ए एन एन. वी यूज एन व्हेन द नेक्स्ट वर्ड और द वर्ड स्टार्ट्स विद द वोवेल और व्हेन यू हियर द साउंड ऑफ वोवेल. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये कह रहा है कि हम जब हमको वोवेल से स्टार्ट होने वाला वर्ड हो या फिर वोवेल आपको सुनाई दे रहा हो उस वर्ड में सबसे पहले, तब आप उसमें एन लगाएंगे. भले ही लेटर स्टार्ट हो रहा हो एक कॉन्सोनेंट से, लेकिन आपको अगर सुनाई देता है एक वोवेल, सो वी विल यूज़ एन इन फ्रंट ऑफ दैट. फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, an apple, an egg, an orange. आप सब लोगों ने फोनिक्स पढ़े होंगे बचपन में. फोनिक्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोग में आएगा बिकॉज यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ द लेटर. लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स. an igloo, an umbrella, an elephant, an apple. Again, few points to remember. We also use n before words that begin with the silent h.
इसमें ये बता रहा है कि हम एन वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पर एच साइलेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट मैन. हम जब ऑनेस्ट बोलते हैं तो वी हियर द फर्स्ट लेटर एज ऑ. ऑ इज ओ एंड ओ इज अ वोवेल. एच बिकम्स साइलेंट ईयर. हम हवर नहीं बोलते हैं या हॉनर नहीं बोलते हैं या फिर हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं. वी ऑलवेज यूज़ ऑनेस्ट, आवर और ऑनर. सो ऑ जब बोलते हैं सो ऑ साउंड इज फॉर ओ एंड ओ इज एन वोवेल, इसलिए हम आर के सामने क्या लगाएंगे? एन. फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर अगेन. वी यूज़ ए और एन with prices, frequency and speeds. We also use a or n before 100, 1000 and million. We use a or n for talking about jobs. Alright students, अभी तक हमने जो पढ़ा है about a and n, अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे in your textbook. This is your textual exercise. I have just took a click and मैंने यहाँ पे डाला है. I want you to do it on your own first, though I will be giving you all the answers along with my video. Okay? Okay students, this is also your exercise, exercise D. This again you have to do in your textbook. He does not take A or N sugar in his tea. अ या एन, अगर ए और एन नहीं आता है तो यू विल पुट अ क्रॉस. ओके, वी नीड हियर यू विल पुट अ क्रॉस. ही डज नॉट टेक शुगर इन हिज टी. वी नीड एन एम्बुलेंस टू टेक हिम टू अ हॉस्पिटल. ओके, all the answers I will be giving to you. You can first you try and then you can check your answers. As we have finished with a and n, which are also called indefinite articles, we will now starting with the definite article. The definite article, there is only one definite article. It is the word the or the. The is a definite article. It indicates exactly or a particular, specific. It tells definitely which item we are talking about or which person or place we are talking about. Let us see some example. The earth, the Taj Mahal, the sun. See बच्चों, यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो वर्ड है वो एक वोवेल से चालू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है. हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि द जो है वो स्पेसिफिकली अर्थ के बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए. दूसरी बात, अर्थ यूनिक है. देयर इज़ नो अदर अर्थ इन द सोलर सिस्टम. सिमिलरली देयर इज़ नो अदर ताज महल एंड वी डू नॉट हैव अनदर सन. सो जो भी चीज़ें यूनिक होती हैं या सिंगल होती हैं यूनिट में, उसमें हम द यूज़ करते हैं. Few points to remember. We use the when there is only one of something. Now this is very important point. जब कोई भी चीज़ सिर्फ एक होती है, जैसे अर्थ, सन, मून, जब वो एक ही होते हैं we use the. We usually use a or n when a noun to talk about a person or thing for the first time. जब मैं फ़र्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बात करूँगी, मैं उसके सामने ए या एन लगाऊंगी. लेकिन जब मैं वही ऑब्जेक्ट को दूसरी बार बोल रही हूँगी तो मैं द लगाऊंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लायन. ना यहाँ पे मैंने अ लायन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एक लायन था. द लायन वॉज वेरी हंग्री. अब मैंने क्या करा, मैंने उसके आगे मैं उसी लाइन के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने अपने फर्स्ट सेंटेंस में डिस्क्राइब किया था, इसलिए मैंने जब सेकंड सेंटेंस बनाया मैंने वहाँ पे अ लायन नहीं बोला, मैंने वहाँ पे द लायन बोला, क्योंकि हम उसी पर्टिकुलर लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैरी, आई बॉट अ CD प्लेयर एंड अ TV यस्टरडे. अब मैरी बोल रही है कि मैं एक
मैं कल एक CD प्लेयर लाई और एक TV लाई। जो बोल रहा है वॉज द CD प्लेयर एक्सपेंसिव, ये उसी CD प्लेयर के बारे में बात कर रहा है जो मैरी लेकर आई, इसलिए उसने यहाँ पे द लगाया। ओके, नाउ फ्यू रूल्स ऑफ यूजिंग द। वी यूज़ द विद द फॉलोइंग, हम इन चीज़ों के साथ में द लगाते हैं। अगर वो किसी नदी का, ओशन का, सी का या माउंटेन रेंजेस के नाम हो तो, फॉर एग्ज़ाम्पल द अरावली माउंटेन, तो द अरावली क्यों? क्योंकि एक तो वो एक ही अरावली, दूसरी अरावली माउंटेन नहीं है, और दूसरी बात एज़ पर द रूल ये माउंटेन रेंज के नाम के आगे हम द लगाते हैं। द नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, द ताजमहल इज़ अ वेल नोन बिल्डिंग, इसलिए हमने उसके आगे द लगाया। द नेम ऑफ होली बुक्स और न्यूज़पेपर्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा, द टाइटैनिक। ओके, द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज़, अब ये सब कंट्रीज़ में नहीं आता, सम कंट्रीज़ में है। वाई सम कंट्रीज़? क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के नाम में एक कॉमन नाउन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द USA, द UK, उसमें यूनाइटेड किंगडम, सो किंगडम क्या है? कॉमन नाउन है, इसलिए उसके आगे हम द लगाएंगे। सुपरलेटिव्स, अगर हम कोई कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम उसके आगे, जब सुपरलेटिव कंपैरिजन करते हैं तो हम उसके आगे द लगाते हैं। द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास की सबसे टॉलेस्ट लड़की। वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट एंड नेक्स्ट। Okay, time to do some exercise in your textbook again. This is exercise F of your textbook. You have to do the answers. You have to write answers in the textbook only. So no need to ask again, मैडम नोटबुक में करना है या टेक्स्ट बुक में करना है। ऑफ कोर्स आपको सारी एक्सरसाइजेस ग्रामर की टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके, another exercise G, where you have to use a, an and the to fill the blanks. Again you have to do this exercise in your textbook itself. I will be sharing all the answers along with my video. Now where we do not use the, हम कहाँ पर the use नहीं करते, तो we do not use the in front of proper nouns. Proper noun जैसे किसी का नाम, मैं ये नहीं कहूँगी I am the श्वेता पांडे, बिकॉज श्वेता पांडे इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो हम उसके आगे द नहीं लगाते। इसीलिए इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के आगे द नहीं आता, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं ऑफ अ कंट्री। नाउन्स दैट नेम मटेरियल्स, किसी मटेरियल का नाम हो, वुड, आयरन, स्टील, तो वी नेवर यूज़ द। नाउन्स दैट नेम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़, ओके, अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन मालूम है क्या होता है, उसके सामने हम द नहीं लगाते। यूजलेस, अनलेस दे हैव बीन मेड पर्टिकुलर, अगर हम किसी चीज़ पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ही हम उसके आगे द लगाएंगे। अगर हम इन जनरल सेंस बोल रहे हैं तो वहाँ पर हम ये चीज़ों के आगे द नहीं लगाएंगे। क्लियर? Alright students, time to do some exercise to revise whatever you have learned till now. Exercise I of your textbook, again you have to do this exercise in your textbook only, and I would suggest that you should try first on your own, ना आए तो ही आप उसके आंसर्स में जाके और कंपेयर करिएगा या फिर उसमें से कॉपी करिएगा। अगर आप खुद करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, अगर आप कॉपी करेंगे तो बिलीव मी आपको आर्टिकल समझ में नहीं आएंगे। एक्सरसाइज जे अगेन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, डू द गिवन एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक। सो दैट मीन्स आपको ये पूरी एक्सरसाइज जितनी भी दी हैं वो सारी अपनी टेक्स्ट बुक में करनी है। दिस इज़ अ पैराग्राफ, यू हैव टू री राइट दिस पैराग्राफ इन योर टेक्स्ट बुक, द स्पेस इज़ ऑलरेडी गिवन। अगर हैंडराइटिंग बड़ी है और उसमें नहीं आता है तो ही जाना नोटबुक में, अदरवाइज आई वुड से आप टेक्स्ट बुक में ही करना। आपको ये पूरा पैराग्राफ फिर से लिखना है यूजिंग ए, एन एंड द वेरेवर नेसेसरी। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स,
दिस इज़ द एंड ऑफ आर्टिकल्स. आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा. प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, एक्सरसाइज पहले खुद ट्राई करना, मम्मी पापा की हेल्प नहीं लेना. अगर ना समझ में आए तो हम आपके डाउट्स शाम को 6 से 7 के बीच में क्लियर करेंगे. बट प्लीज़ व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, do not ask us whether we have to do the exercise in textbook or notebook. Again and again I am saying that all the exercises are to be done in your textbook only. So don't ask me again शाम को मैडम नोटबुक में करना है कि टेक्स्ट बुक में करना है. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, आप खुद ट्राई करोगे तो जल्दी क्लियर होगा. अगर आप पूछ के करोगे या कॉपी करोगे तो वो आंसर्स आपको सिर्फ आंसर्स रह जाएंगे, आपको आर्टिकल समझ में नहीं आएगा. और सारे एक्सरसाइज एक दिन में करने की ज़रूरत नहीं है. ब्रेक योर सेशंस अकॉर्डिंगली. अब पूरे वीक में आपको एक आर्टिकल पढ़ना है तो अब पूरे वीक में आप अपना डिवाइड कर लो लर्निंग. क्लियर? थैंक यू एंड सी यू इन द इवनिंग बिटवीन 6 to 7. Thank you.